alcohol. Journal formula ROH. Phenol. Benzene with OH group. इसे हम एरोमेटिक अल्कोहल कह सकते हैं. एंड ईथर इज जर्नल फॉर्मूला ROR. इस चैप्टर में 3 सब टॉपिक्स कह सकते हैं, 3 टॉपिक्स कह सकते हैं: अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स. अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स. सबसे पहले डिटेल में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द अल्कोहल. नोमेनक्लेचर आपको आता है, उस बारे में ज़्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है. ठीक है, जहां पर जरूरत होगी तो मुझे बताते जाना कि नेम नहीं आता है तो मैं बता दूंगा उसका. अदरवाइज 2 सिस्टम्स आर देयर, एक IUPAC नोमेनक्लेचर और एक कॉमन नोमेनक्लेचर. आई एम टॉकिंग अबाउट द राइट डाउन क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स. क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स. कार्बन जिसके साथ में OH ग्रुप लगा हुआ है, that is sp3 hybridized. One possibility is this. सेकेंड, जिस कार्बन के साथ में OH ग्रुप लगा हुआ है वो sp2 hybridized. First I am going for these classifications. Carbon containing sp3 and carbon containing sp2. Now see, suppose I say I have this compound, this is sp3 hybridized, but if I say it is a CH2 double bond CH and then OH, this carbon atom is now sp2. So it can be like this, sp3 or sp2. First of all, we discuss about those compounds which are sp3 hybridized. Carbon with which OH is bonded is sp3 hybridized. It is of 3 types: primary, secondary and tertiary. प्राइमरी का मीनिंग होता है जिस कार्बन एटम के साथ में OH ग्रुप बॉन्डेड है, that is further directly bonded with one carbon atom directly. डायरेक्टली वो कितने कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है वो प्राइमरी है. This carbon atom is directly bonded with one more carbon atom directly. कितने भी लंबे चेन हो सकते हैं बट डायरेक्टली वो एक के साथ बॉन्डेड है, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी. जिस कार्बन एटम के साथ में OH ग्रुप बॉन्डेड है, अगर वो 2 कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है, इट इज ए सेकेंडरी. और जिस कार्बन एटम के साथ में OH बॉन्डेड है वो डायरेक्टली 3 के साथ बॉन्डेड है, देन इट इज कॉल्ड एज ए 3 डिग्री और टर्शरी. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. Am I clear to all? Kirti? Next, we talk about the allylic alcohol. This particular group is called the allyl group. और इसके साथ में अब हमने यहाँ पर OH ग्रुप लगा दिया,
This compound is called the allyl alcohol. Next, benzene with CH2 group is called the benzyl group. और यहाँ पर हमने OH ग्रुप लगा दिया, that is called as a benzyl alcohol. Benzyl alcohol. Note it down. अब आते हैं उन कंपाउंड्स में जिसमें कार्बन एटम जिसके साथ में OH बॉन्डेड है, that is sp2 hybridized. That is sp2 hybridized. Like this. This compound is commonly called as a vinyl alcohol. IPC name is 1,2. It's enol. Am I clear? Now we talk about isomerism in alcohol. Number one, chain isomerism. Number one, chain isomerism. Same molecular formula, but different chain length. Student, just give me a minute, please.
Okay, now I'm back now. Same molecular formula but different structural formula. For example, if I say I have this compound, अब ना बिना ज़्यादा सोचे हुए, बिना टाइम वेस्ट के क्विकली नेम बता दो, वेटिंग टाइम नहीं देना. 4 कार्बन चेन है, और अगर मैं इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को ऐसे बना दूं कि एक को ब्रांचिंग में कर देता हूं, दोनों के पास में C4 है, दोनों के पास में H10 है, दोनों के पास में एक ऑक्सीजन है. दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट चेन लेंथ. चेन लेंथ यहाँ पर 3 कार्बन चेन. नाउ नेम दिस कंपाउंड. Propanol, right? 2-methyl propanol. So they have the same molecular formula but they have a different chain length. So these are chain isomers of each other. Am I clear? Second is position isomerism. Position isomerism. Same molecular formula but different position of the double bond of the functional group. This OH is at number 1 position. We call it a propanol. This is at number 2 position. It's a prop in 2-ol. So the position is changed. So we call this is a position isomer. Next is functional isomerism. Functional isomerism. Same molecular formula but different functional group. यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में अल्कोहल है, OH ग्रुप है, C3 है और H8 है, ऑक्सीजन है. और अगर हम इसी फॉर्मूला को ऐसा दिखा दें तो ये भी C3H8O है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट फंक्शनल ग्रुप इज, यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ईथर. इस कंपाउंड का नेम क्या है? इथेन. So they have the same molecular formula but different functional group, and that is why these are called as a functional isomers.
Am I clear? एक टॉपिक हमने हैलोकेन हैलोरीन में पढ़ा था, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. सेम कॉन्सेप्ट, सेम apparatus, सेम डाइवर्जन, एवरीथिंग सेम. बस अब मैं डायरेक्टली की पॉइंट पर आ रहा हूं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के. नेसेसरी कंडीशन फॉर ए कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव इज डिसिमेट्री, कायरल कार्बन एटम. तो यहां पर ये कायरल कार्बन एटम है, एक ऐसा एटम जिसके साथ में ऑल द 4 एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स आर डिफरेंट. सच टाइप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड एज ए कायरल कार्बन एटम. और जब हम इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बनेगा. इफ वन इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अदर इज लीवो रोटेटरी. कॉन्सेप्ट याद है सभी को? डेक्स्ट्रो लीवो का मीनिंग मालूम है? प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट करना. जो राइट में करता है उसे कहते हैं राइट डेक्स्ट्रो, और जो लेफ्ट में करता है उसे कहते हैं लीवो. राइट? तो नेसेसरी कंडीशन इज द डिसिमेट्री. तो कोई भी ऐसा अल्कोहल जिसमें कि एक ऐसा कार्बन एटम हो जिसके पास में ऑल द 4 एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर डिफरेंट, these are this carbon atom is called as a chiral carbon atom. जिसके साथ चारों डिफरेंट लगे हुए हों, this is called as a chiral carbon atom. कोई डाउट किसी को इसमें? आता था टॉपिक है. मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट चैप्टर पढ़ के आना, देखना कि 90% चीजें रिपीट होंगी वहां पर. ठीक है, 90%. मैं 10% ही कुछ मैंने नया कराना है इस चैप्टर में. बस जहां पर क्लोरीन लगा था वहां पर मैं यहाँ पर OH ग्रुप लगाने वाला हूँ. ठीक है, थोड़ा थोड़ा कुछ चेंज आता जाएगा, अदरवाइज मेजर थिंग्स विल बी सेम. इसके बाद करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन. वहां पर भी प्रिपरेशन की थी हमें हैलोल्केन की, अभी हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स. ये वाला कंपाउंड किस फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है? क्या रिप्रेजेंट करता है? हाँ, बोलते जाओ फट, दोबारा बोलो. एल्काइल हैलाइड, यानी कि हैलोल्केन जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था. इसमें एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? ROH. कौन सी मैकेनिज्म से होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. अगर ये हमारे पास में प्राइमरी होगा तो SN2 होगा, टर्शियरी होगा तो SN1 होगा, और अगर सेकेंडरी होगा तो दोनों SN1 SN2 दोनों में से कोई भी हो सकता है. इज दैट क्लियर? तो अब आपको SN1 SN2 मैकेनिज्म आता है. वहां पर पढ़ा था हमने हैलोल्केन की प्रॉपर्टी, और अब हमने वही रिएक्शन यूज कर लिया इन द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स. सेम रिएक्शन. मैंने आपसे पहले कहा था वो चैप्टर पढ़ के आओ, 90% चीजें सेम. मैं हर बार आपको याद दिलाता रहूंगा, फर्स्ट चैप्टर पढ़ो. रिमेनिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी वेरी इजी. सिर्फ फर्स्ट चैप्टर तैयार करो. सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर पर बेस्ड है. नहीं, हैलोल्केन हैलोरीन पर. ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक. समझ में आ गया सभी को ये? अश्मित? हाँ, इजी टॉपिक है, राइट? नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, राइट डाउन रिडक्शन. रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. रिडक्शन ऑफ व्हाट? एल्डिहाइड और कीटोन्स. रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स. रिडक्शन करने के लिए आपको चाहिए कोई रिड्यूसिंग एजेंट. रिडक्शन करने के लिए चाहिए आपको
रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट? नंबर 1, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम, बहुत फेमस है, पहले से करते आ रहे हो। सेकेंड रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। थर्ड रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम बोरोन हाइड्राइड। सोडियम विद अल्कोहल। इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो, कोई भी यूज कर सकते हो टू रिड्यूस। बेसिकली पर्पज इनका है H एटम प्रोवाइड करना। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ए रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ए रिडक्शन। तो जो H एटम प्रोवाइड करेगा दैट इज कॉल्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। दैट इज कॉल्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, राइट? नोट कर लेता। चलो अब हम रिडक्शन करके दिखाते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन से अल्कोहल कैसे बन जाता है। बहुत सिंपल सा रिएक्शन होगा। दिस इज द एल्डिहाइड RCHO। ये हाइड्रोजन आ रहा है फ्रॉम द रिड्यूसिंग एजेंट। जो मैंने आपको 4 रिड्यूसिंग एजेंट बनाए हैं उनमें से कोई भी ऐड कर सकते हो। क्या करेगा, एक हाइड्रोजन यहां ऐड होगा और एक हाइड्रोजन यहां पर ऐड होगा। इट मींस अब ये बन गया R, यहां पर H, यहां पर H और यहां पर OH। तो मिल गया हमें प्राइमरी अल्कोहल। क्या मिल गया हमें? प्राइमरी अल्कोहल। राइट? एनी एल्डिहाइड अपॉन रिडक्शन गिव्स प्राइमरी अल्कोहल। अब आप R की जगह पर इथाइल चूज कर लीजिए, तो हाइड्रोजन ऐड करिए, R remains same, it become now CH2OH, it become primary alcohol। प्रोपेनॉल बन गया, प्रोपेनल से प्रोपेनॉल बन गया। दिस इज ए प्रोपेनल, अल फॉर एल्डिहाइड एंड प्रोपेनॉल फॉर अल्कोहल। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ए रिडक्शन। जस्ट अ मिनट। यहां तक कोई डाउट किसी को? Now we have a ketone group. Again, I'm adding this hydrogen and they coming from the reducing agent. कहाँ अटैक करेगा? एक यहां पर और एक यहां पर। पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा, OH, H and R. This becomes secondary alcohol. It means एल्डिहाइड की रिडक्शन से मिलता है प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन की रिडक्शन से मिलता है सेकेंडरी अल्कोहल। इस मेथड की लिमिटेशन है 3 डिग्री अल्कोहल कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। Aldehyde gives primary alcohol. Aldehyde gives primary alcohol. And secondary alcohol obtained from the ketone.
Am I clear? Now, next method. Next method. Reduction of carboxylic acid and ester, RCOOR. Reduction of carboxylic acid or esters. Carboxylic acid upon reduction gives primary alcohol. कॉपी खाली छोड़ दे तो भी पास कैटेगरी रिजर्वेशन. Next point, is that clear? Okay. ये स्टैंडर्ड रिएक्शंस हैं, इनको एज सच ही याद कर लेना है. ये हमारे पास एक अगर एस्टर है, इसी रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में दो अल्कोहल मिलेंगे, एक यहां से अल्कोहल मिलेगा और एक मिथाइल अल्कोहल मिलेगा. Note it down. Next method, from Grignard reagent. From Grignard reagent.
फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? रिमेंबर इट एट्स ना RMGX। X for halogen, fluorine, chlorine, bromine, iodine. From the carbonyl compound. Carbonyl compound means एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी हो सकता है, इसलिए मैं अभी CO रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, राइट। अगर यहाँ पर R हो और यहाँ पर H हो तो एल्डिहाइड कहते हैं इसे, और अगर दोनों R हो जाए तो कीटोन कहते हैं। बेसिकली आई एम सेइंग दीज आर द कार्बोनिल कंपाउंड्स। दिस इज Grignard reagent, RMGX. Magnesium is a metal electropositive, R is negative. यहाँ पर O के साथ पॉजिटिव और यहाँ पर R। Now add water in the acidic medium. यहाँ से MgOH बाहर हो जाएगा और H यहाँ ज्वाइन हो जाएगा। This is the mechanism of making the alcohol. नोट करो मैकेनिज्म को। अब यहाँ से मैं बताऊंगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल कैसे बनाते हैं। अगर ये दोनों ही H लगे हुए हैं तो इस कंपाउंड का नाम क्या है? मिथेनॉल, कॉमन नेम फॉर्मेल्डिहाइड। तो हमने H यहाँ लगा दिया, फिर H यहाँ लगा दिया। अब आप मुझे बताओ किस टाइप का अल्कोहल बना है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी? प्राइमरी बन गया, राइट, RCH2OH। इट मीन्स अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन स्टार्ट करते हो और यहाँ से आप कितनी भी लंबी चेन अटैच कर सकते हो, इट विल गिव यू प्राइमरी अल्कोहल। नोट कर लो। दोबारा बोलो। सेकेंड स्टेप में ये हुआ है कि H पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है, यहाँ से Mg पॉजिटिव और यहाँ से OH नेगेटिव। तो Mg के साथ में ये कंबाइन कर गया। इसके साथ में एक साइड प्रोडक्ट और मिलेगा आपको, जो हमें दिखाना नहीं है क्योंकि हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस कर रहे हैं। तो ये साइड प्रोडक्ट मिलेगा। अभी हम अल्कोहल पर फोकस कर रहे थे तो साइड प्रोडक्ट ये भी मिलेगा। हो गया नोट, राइट।
अगर आप एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के कोई भी और एल्डिहाइड चूज कर लेते तो यहाँ पर आर आ जाता और यहाँ पर आर आ जाता। अब आप मेरे को बताओ किस टाइप का अल्कोहल मिलेगा ये? सेकेंडरी अल्कोहल। एनी एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड। एंड नाउ द लास्ट केस, अगर ये कीटोन हो तो क्या मिलेगा बताइए? हाँ, क्या मिल गया? अब क्वेश्चन ये था सर, यस, आई एम बैक नाउ। तो अगर कीटोन के साथ रिएक्शन स्टार्ट करते हो तो आपको मिलेगा 3 डिग्री अल्कोहल। एम आई क्लियर अर्शप्रीत? नाउ Grignard reagent with ester. Grignard reagent with ester. ये हमारे पास एक एस्टर है। मैं इस समय यहाँ पर CH3 मान लेता हूँ और अब मैं यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करवाता हूँ। लेट इट बी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है हमारे पास में CH3MgBr। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव, O के साथ में MgBr। इज दैट क्लियर? इसके बाद में यहाँ से Mg पॉजिटिव और यहाँ से इसको कंबाइन करेंगे, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पर होगी। तो साइड पे एक प्रोडक्ट मिलेगा MgBr एंड OCH3। कीटोन मिल गया। कीटोन मिलने के बाद में एक बार फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करेगा। O MgBr CH3 CH3।
इसमें वाटर ऐड करो, H पॉजिटिव, तो एस्टर अपॉन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, डबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक होता है, एक बार यहाँ पर अटैक हो रहा है और फिर यहाँ पर अटैक हो रहा है। तो 2 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज होगा विद 1 मोल ऑफ एस्टर, इट विल गिव टर्शियरी अल्कोहल। यहाँ से रिमूव हो गया। डन, यहाँ तक कोई डाउट इसमें? जस्ट अ मिनट प्लीज। अब कुछ से प्रैक्टिस करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितना हमने पढ़ा है। ये वो पार्ट है जो कि एग्जाम में आना है ना, एग्जाम में कैसे करना है बस। चले, आंसर दिस क्वेश्चन। मोनोहाइड्रिक मीन्स जो इसके पास में एक OH होता है, मोनोहाइड्रिक। यस, अर्शप्रीत, वंशिका, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। सपोज कि आपके पास ये अगर अल्कोहल है तो हम इसको बनाते हैं C2 देन H6O, राइट। अब बनाइए CnH2n+2O। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर। नाउ यस, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर टू ऑल? वर्क अपॉन दिस क्वेश्चन नाउ। अच्छा, कल आपका टेस्ट है, सैटरडे है। सिलेबस क्या रहेगा? ओनली P ब्लॉक सारा। हाँ, कौन सा बनाया आपने? फोर्थ ऑप्शन, ठीक।
दोबारा बोलो। इसमें कुछ पूछना है? ओके ओके, जस्ट मिनट। राइट, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। टर्शियल अल्कोहल, क्लियर है सहजप्रीत? राइट, चलो गुड, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक, अश्मित, कीर्ति, 1 डिग्री, गुड। जिस कार्बन एटम के साथ में OH बॉन्डेड है वो डायरेक्टली एक ही तो कार्बन से बॉन्डेड है, तो प्राइमरी हो गया। इसमें टर्शियरी नहीं है, प्राइमरी है और सेकेंडरी है। जो टर्मिनल वाले हैं वो प्राइमरी है और बीच वाला सेकेंडरी है। इसमें 3 डिग्री नहीं है। क्लियर है सभी को? हर्षिता? राइट। अब आपको इसमें मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। जो मैनिटोल है ये एक कार्बोहाइड्रेट है और इसका स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा, बताते हैं आपको ऐसा। ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें एक से ज्यादा, दो से ज्यादा OH ग्रुप हैं, इसलिए हम इसे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। जिसमें दो या दो से ज्यादा OH ग्रुप आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। क्लियर टू ऑल? स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया मैनिटोल का? ठीक। अब जो स्ट्रक्चर बनाया था उसमें कितने प्राइमरी हैं और कितने सेकेंडरी हैं और कितने टर्शियरी हैं? बना लो स्ट्रक्चर को दोबारा से और आइडेंटिफाई करो नंबर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शियरी।
ओके, फर्स्ट ऑप्शन। ओके ठीक है, देख सकते हैं अपन ये वाले दो अप एंड डाउन वाले प्राइमरी हैं और बीच वाले सेकेंडरी हैं और टर्शियरी इसमें से कोई भी नहीं है। एम आई क्लियर? चल ठीक है। नहीं बच्चे, ये होता है सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। अब बता दो इसमें से कौन सा है? सेकंड ऑप्शन या। आपको इसका मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। अब इसका आईपीसी नेम बना दो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। राइट, हेलोकेन हेलोरिन चैप्टर को थोरली करके आइए। ओके, आज के लिए इतना ही करते हैं।